بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والنساء من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. یہ سورہ نور کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو کچھ اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا پھر اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے لیے یا خود کے بیٹوں کے لیے یا شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے اور بھانجوں کے لیے اور ان کی میل جول کی عورتوں کے لیے اور جو ان کے ملک یمین میں ہوں ان کے لیے یا پھر خود کی میل جول کی عورتیں ان کے لیے یا پھر وہ مرد جو کسی قسم کی حاجت نہ رکھتے ہوں یا پھر وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں تاکہ جو زینت وہ چھپائے ہوئے ہوں ظاہر ہو جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایک خاص چیز کی تاکید کی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. جیسا کہ ایک عورت اگر چادر اوڑھتی ہے یا برقع لگاتی ہے تو اس کا برقع جو ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس میں سادگی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اسے میں کسی قسم کی کشش نہ ہو، کوئی اٹریکشن نہ ہو کہ جو سامنے والے کو نظر ڈالنے پر مجبور کرے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھیوں کے آنچل ڈال لیں. اس میں صاف صاف دوپٹے کا حکم دیا گیا ہے. جس وقت ان آیتوں کا نزول ہوا تھا اس وقت عرب میں خواتین دوپٹے کا استعمال نہیں کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو جو صحابیات تھیں، جو بچیاں تھیں، جو خواتین تھیں، وہ تمام کے تمام فوراً اٹھتی ہیں اور اپنے کپڑوں میں سے موٹے موٹے کپڑے نکال کر دوپٹہ بنا کر اسے لپیٹ لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک مسلم بچی کے لیے، ایک بچی کے لیے اور ایک عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. جو محرم رشتہ دار ہیں ان کی تفصیل اس میں بتائی گئی ہے. کون کون ہیں میں یہ ایک بار مختصراً ذکر کر دیتی ہوں. شوہر، خود کے والد، شوہروں کے والد یعنی سسر، خود کے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، خود کے بھائی اور بھتیجے اور بھانجے اور میل جول کی عورتیں اور وہ مرد جو ان کی ملکیت میں ہوں اور وہ مرد جو ان کے پاس کام کرتے ہوں اور کسی قسم کی حاجت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہوں، جو بچے چھوٹے ہوں، ان کے سامنے ایک عورت بغیر پردے کے آ سکتی ہے. آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں تاکہ جو زینت چھپی ہوئی وہ بھی ظاہر ہو جائے. ایک عورت اگر پیروں میں کوئی زیور پہنے ہوئے، پہلے تو بجنے والے زیور پہننے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر وہ پہنی ہوئی ہے تو آہستہ پیر رکھتے ہوئے چلے تاکہ اس کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں اس کے زیوروں کی جھنکار بھی نہ جائے. اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना वन यस्तअफ़फ़फ़न खैरुल लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। कि वो बड़ी उम्र की औरतें जो कि अभी निकाह वगैरह के कोई जज्बा नहीं रखती हैं, कोई उम्मीद नहीं रखती हैं, ऐसी औरतें अगर चाहें तो अपने ऊपरी कपड़े जैसे चादर वगैरह उतार कर रख सकती हैं। जीनत को जाहिर करना उनका मकसद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपनी आसानी के लिए ऊपरी कपड़े उतार सकते हैं। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि अगर वो भी इससे भी बचें तो उनके लिए बेहतर है। अगर ये ऊपरी कपड़े भी ना उतारें तो उनके लिए बेहतर है। उसके बाद सूरह नूर सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इनित्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। कि ऐ नबी की बीवियों, यहाँ पर नबी की बीवियों को मुखातब करके और उनके तवस्सुस से दूसरी मुस्लिम ख़वातीन को भी अल्लाह ताला ने मुखातब फरमाया और ये फरमा रहे हैं कि तुम दूसरी आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अपने दिल में तक़वा रखते हो, अल्लाह ताला का खौफ रखते हो, अल्लाह ताला का डर रखते हो, तो किसी गैर महरम से अगर तुम्हें बात करना पड़ जाए तो दबी ज़बान में बात मत करो। अपनी आवाज़ में जानबूझकर कोई शीरीनी, कोई मिठास मत पैदा करो और गैर महरम से इस अंदाज में बात करो, कुल्ना कौलम मारूफ़ा, साफ और सही सीधी सीधी बात करो ताकि सामने वाला हमसे कोई दूसरी उम्मीद ना लगा बैठे। आगे फरमा रहे हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में टिक कर रहो और दौर जाहिलियत की सी सजदत ना दिखाती फिरो। देखिए अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक बिला वजह घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। हम अपनी ज़रूरियात के लिए निकल सकते हैं, हम इल्म दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए, सिखाने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, इयादत करने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए बेशक हम घरों से निकल सकते हैं। पर्दे के अंदर रहकर अल्लाह ताला के कानून के इस्तेमाल करते हुए हम बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि तुम दौर जाहिलियत की सी सजदत ना दिखाती फिरो। दौर जाहिलियत उस ज़माने को कहते हैं जो इस्लाम आने से पहले का ज़माना था। उस वक्त की जो ख़वातीन थी वो बेपर्दा और बनाव सिंगार करके बाहर निकलती थी, घूमती थी, जिसे आज के तरक्की याफ्ता दौर में लोग जिसे तरक्की कहते हैं, खुले आम, खुले बगैर हिजाब के फिरना घूमना, इसे अल्लाह ताला दौर जाहिलियत की अलामत करार दे रहे हैं। उसके बाद एक और आयत सूरह अहज़ाब की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़न फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। कि ए नबी, तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुस्लिम औरतों से कह दो वो अपने ऊपर चादरों को लटका लें, और ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएँ कि वो शरीफ घराने की औरतें हैं और उन्हें सताया ना जाए। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर से पर्दा इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि हम चादर को सर से पैर तक इस तरीके से लटका लें कि वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा भी ज़ाहिर ना हो और मुकम्मल तौर से हम बाहिजाब हो जाएं। अब हिजाब की या पर्दे की शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसमें ये वुसअत है कि अल्लाह ताला ने उसे हमारी मर्ज़ी पर छोड़ा है। लेकिन ये कि वो तंग नहीं होना चाहिए, फिट नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी गैर मर्द के लिए कोई कशिश मौजूद हो। ये तमाम आयतें जो कुरान मजीद में हमारे लिए इरशाद फरमाई गई हैं, ये आयतें हमारे लिए कानून की हैसियत रखती हैं, कानून का दर्जा रखती हैं, और इसीलिए हर मुस्लिम औरत इसे नहायत फ़ख्र के साथ अपनाती है और इस पर अमल करना वो ज़रूरी समझती है, और इसे छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। और साथ ही साथ हमें भारतीय कानून में भी, भारतीय दस्तूर में भी हक़ दिया गया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन
चाहे वो टीचर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, जहाँ तक कि हमने पायलट ख़वातीन को भी देखा है कि वो पाकिस्तान की जो अस्मा हुदा हैं वो पूरे पर्दे के साथ वो जहाज़ भी उड़ाती हैं। तो इस तरीके से ये पर्दा जो है ये हमारी तरक्की के लिए रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारा मुहाफ़िज़ है, ये हमारे लिए मजबूत किला है, ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारा शिआर है, ये हमारा इस्लामी वक़ार है, और ये हमारी उसी तरीके से हिफाजत करता है, हमारी सच्चे मोतियों की सीप बनकर, और हम जैसे सच्चे मोतियों की हिफाजत करता है। और ये बात भी मैं बता दूं कि हमारे माशरे में दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं, बहुत पहले के पुराने ज़माने से ही वो ख़वातीन दूसरे मज़हब की होने के बावजूद भी पर्दा इख्तियार करती हैं, और आज भी बहुत हमारे ही मुल्क में बहुत सारे इलाक़ों में गैर मुस्लिम जो ख़वातीन हैं वो भी मुकम्मल तौर से पर्दा करती हैं, और यहाँ तक कि घरों में अपने जो उनके गैर महरम रिश्तेदार हैं उनके सामने घूंघट भी करती हैं वो। और मुल्क का जो संजीदा और पढ़ा लिखा समझदार तबका है वो इसकी हर हाल में हिमायत करता है। जो मुखालफत करने वाले लोग हैं वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। वो या तो ऐसे लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने शऊर नहीं दिया है, या फिर वो मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत फैलाना चाहते हैं, और या तो फिर ये कि वो इसके पीछे लगकर अपना कुछ न कुछ मफाद हासिल करना चाहते हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम बच्चियाँ या गैर मुस्लिम जो बहनें हैं वो भी किसी न किसी हद तक हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं। ये उनके अंदर फितरी जो शर्म हया है उसी का नतीजा है, और हम ऐसी बच्चियों के, ऐसी ख़वातीन की भी कद्र करते हैं। और साथ ही साथ हम उन्हें ये तमाम लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि कुरान की जो आयतें हैं, कुरान में जो पर्दे के कवानीन हैं वो सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की हर औरत इसे अपना सकती है, इसे इख्तियार कर सकती है, और वो आम लोगों से अलग होकर कुछ मुनफरिद अंदाज की ज़िंदगी गुजार सकती है। और अगर हम इन इलाही कवानीन को अपनाते हैं तो निर्भया और ऐसी इस जैसी बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो ज़्यादती का शिकार रोज़ाना होते रहती हैं, ये मामलात तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। और हम हमारी छोटी छोटी बच्चियों को भी अगर मुकम्मल सातिर लिबास पहनाते हैं तो जो नाबालिग बच्चियों के साथ भी ज़्यादती को जो वाक़यात होते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम में ये तमाम कवानीन हमारी अपनी हिफाजत के लिए, हमारी अपने ही फ़ायदे के लिए अता किए हैं। और अभी फ़िलहाल जो कर्नाटक में जो बच्चियाँ डटी हुई हैं, अल्लाह ताला ने इस्तिकामत अता फरमाए अपने पर्दे को लेकर। और मुस्कान नाम की बच्ची को हम सभी दिल से खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उस बच्ची ने एक ऐसे माहौल में कि जहाँ पर एक बच्ची डर जाती, सहम जाती, लेकिन वो दिल में डरते हुए भी उसने दिल से अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल हुई, और अल्लाह ताला ने उसे एक गलत माहौल में से बहुत अच्छे तरीके से बचा लिया। हम उन तमाम बच्चियों के भी साथ हैं। साथ ही साथ हम कर्नाटक हाई कोर्ट के जजेस से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए सही अंदाज में, सही तरीके से फ़ैसला करें, ताकि किसी को भी उस हक़ तलफ़ी यहाँ पर ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।